بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے شہر قائد میں گیس کا بحران حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ شیریں جناح کالونی گلشن سکندر میں بھی گیس نہیں آ رہی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گیس کے بل تو آتے ہیں لیکن گیس کئی مہینے سے غائب ہے۔ گیس کی بندش جاری، شہریوں پر پریشانی کی کیفیت طاری۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں گیس کی ترسیل تعطل کا شکار ہے۔ شیریں جناح کالونی گلشن سکندر کے مکینوں کو بھی گیس کی قلت کا سامنا ہے۔ علاقہ مکین LPG گیس سلنڈر کے ذریعے کھانا اور ناشتہ تیار کرنے پر مجبور ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سلنڈر کے استعمال سے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ گیس آتی نہیں مگر بل پابندی سے آتے ہیں۔ گیس کا بہت زیادہ بحران ہے کیونکہ باہر سے کھانا لانا پڑتا ہے اور بہت مہنگائی بھی ہے۔ SSG والوں کو کمپلین کر کے جو ہے نا ہم تک گئے، تو وہ جو ہے نا گیس کی لائنیں نئے ڈلوا دی، سب کچھ کر دیا لیکن گیس نہیں آ رہا، تو اور میٹر جو ہے نا رینٹ بقایا آ رہے۔ شاہ لطیف ٹاؤن، نارتھ کراچی، نارتھ اسلام آباد، گڈاب ٹاؤن، تیسرا ٹاؤن سمیت دیگر گنجان آباد اور مضافاتی علاقے بھی گیس کی آنکھ کی متاثر ہیں۔ کیمرامین محمد کاشف کے ہمراہ بسیم افتخار، City 21 نیوز۔ مہنگائی نے اشیاء ضروریہ کو شہریوں کی پہنچ سے دور کر دیا ہے۔ شہر میں مسالے کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئی ہیں۔ اب چٹ پٹے کھانوں کے چٹخارے لینے ہیں تو مہنگے مسالے خریدنے پڑیں گے۔ کمپنیوں کے مسالوں کے ساتھ ساتھ کھلے مسالے بھی مہنگے ہو گئے۔ کھلے مسالے میں 1 کلو ہلدی 3 دن میں 80 روپے مہنگی ہو کر 480 روپے، پسی مرچیں 640 سے بڑھ کر 800 روپے اور پسا ہوا دھنیا 400 سے بڑھ کر 560 روپے کلو پر پہنچ گیا۔ دوسری جانب کمپنیوں کے مسالوں میں 60 گرام کا پیکٹ 10 روپے اضافے سے 100 روپے اور 100 گرام پیکٹ 20 روپے اضافے سے 170 روپے کا ہو گیا۔ کاروبار کا دیکھا جائے تو کاروبار تو متاثر ہوتا ہی ہے، اور جب مہنگائی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے سیل بھی کم ہوگی۔ لیکن کیا ہے اب یہ وہ حساب ہو گیا کہ لوگ جو 4,000 5,000 کا سامان لیتے تھے اب 3,000 کا 2,500 کا 3,000 کا لیکن لیتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ مسالے مہنگے نہیں ہونے چاہیے۔ مسالے بہت زیادہ مہنگے اور غریب بہت تنگ آ گیا، روٹی کھانے سے بہت مشکل ہو گئی، ہر چیز مہنگی ہے، روٹی مہنگی، سالن مہنگا، ہر چیز مہنگی ہے۔ برائے مہربانی کو مہنگائی دے کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہماری حکومت اس بارے میں سوچے کہ جی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ غریب عوام کہاں تک جائے گی۔ تاجر مسالوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ LCs کا نہ کھلنا اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی کو قرار دیتے ہیں، جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس بدترین دور میں گزارا کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ بسیم افتخار، City 21۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 9 میں موجودہ برساتی نالے میں لوگوں نے سیوریج کی لائنیں ڈال دی ہیں۔ کچرے اور گندگی کی وجہ سے نالا چوک ہو گیا۔ اوور فلو ہونے سے برساتی نالا 2 ماہ قبل ابلا تو UC 5 کے 9 منتخب چیئرمین عارف منیر، سابق ٹاؤن ناظم فاروق نعمت اللہ اور میونسپل کمشنر DMC سینٹرل نے نالے کی صفائی کا ذمہ اٹھا لیا۔ فیڈرل بی ایریا کے برساتی نالے میں شہریوں نے گھر کی لائنیں ڈال دیں، جس کی وجہ سے 2 ماہ قبل نالا ابل پڑا۔ نالے کی صفائی کے لیے UC 5 کے 9 منتخب چیئرمین عارف منیر، وائس چیئرمین منصور صدیقی اور ضلع وسطی کے میونسپل کمشنر آفاق سعید نالے کی صفائی کے لیے میدان میں آ گئے۔ UC 5 کے چیئرمین عارف منیر اور وائس چیئرمین کا کہنا ہے کہ ہم نے اب تک حلف بھی نہیں لیا لیکن پھر بھی کام کریں گے۔ یہ برساتی نالا چل رہا ہے، اس میں سیوریج کی لائن نہیں ڈل سکتی۔ یہاں پوری یہاں سے لے کے ملک اسٹریٹ تک سیوریج کی لائن کوئی نہیں ہے، سب نے اپنا ایزی وے بنایا اور برساتی نالے میں ڈال دیا۔ اب جب برساتی نالے کا بیک اپ مارے گا پانی تو ظاہری بات ہے وہ باہر آئے گا، باہر تک مشکل میں ڈالے گا۔ ہم نے پچھلے سیٹرڈے سے علاقے کے لوگوں کے مسلسل کمپلینس کے بعد پھر ہم نے کام شروع کیا، حالانکہ ظاہر ہے کہ ابھی اس طریقے سے اختیارات کا ایک تبادلہ تو نہیں ہوا ہے، ٹرانسفر آف پاور نہیں ہوئی ہے، ابھی اس طرح سے ہم نے عہد تو نہیں اٹھائے، لیکن اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس کے اوپر کام شروع کیا۔ UC کے 9 منتخب کونسلرز بھی اپنے چیئرمین کے شانہ بشانہ علاقائی مسائل کے حل کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں۔ سابق ٹاؤن ناظم فاروق نعمت اللہ نے مختلف تعاون کرنے پر محکموں کا شکریہ ادا بھی کیا ہے۔ ایک ادارہ ہے جو اس اسٹارم واٹر ڈرین کو صاف رکھنے کا ذمہ دار ہے، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ دوسرا ادارہ ہے سیوریج، وہ بھی یہاں موجود ہے، وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ یا سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ، وہ بھی یہاں موجود ہے۔ تینوں ادارے مل کر اور ہم جو منتخب لوگ ہیں، اب ایک دوسرے کی کوارڈینیشن سے یہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ 9 منتخب نمائندے کے مطابق نالے کی صفائی کا کام 3 سے 4 روز میں مکمل ہو جائے گا۔ تاہم مکینوں کو بھی چاہیے کہ برساتی نالوں میں سیوریج لائنیں ڈالنے سے گریز کریں اور صفائی ستھرائی کا خاص خیال۔ کیمرامین محید رضوی کے ساتھ اقصی شاہد، City 21 نیوز۔
जहांगीर रोड पर तरक्याती काम अब तक शुरू ना हो सका। सड़क पर मिट्टी के ऊंचे पहाड़ शहरियों के लिए अजियत का बायस बनने लगे हैं। जहांगीर रोड खस्ताहाली के बायस तबाह हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे और मिट्टी के टेले शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। जहांगीर रोड खस्ताहाली के बाइस तबाह हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे और मिट्टी के टीले शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगे। शहरियों का कहना है कि सड़क की मुरम्मत के लिए हुक्काम बाला को बार बार अपील की गई है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारा तकरीबन 40 साल हो गए इस इलाके में। ये रोड काफ़ी अरसे से कच्चा है और सुबह का टाइम और शाम का टाइम हर वक्त जाम रहता है, ये गड्ढों की वजह से। शहरियों का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर इस सड़क से हैवी ट्रैफिक का गुजर होता है। सड़क की खस्ताहाली की वजह से कमर और मोहरों में दर्द के मसाइल पैदा हो रहे हैं। सड़क की खस्ताहाली के बायस लम्हों का सफर घंटों में तय होने लगा। 6 महीनों से मैं इधर आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ। रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत तकलीफ हमें होता है, आने जाने में भी टाइम पे भी नहीं पहुँच सकते, लेबर के लिए भी तकलीफ होती है। शहरियों ने हुकूमत और मुतल्लिका हुक्काम से अपील की है कि सड़कों की जल्द से जल्द मुरम्मत की जाए ताकि मसरूफ तरीन शाहरा से गुजरने वालों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरा हिल के हमरा इकरावान, सिटी 21, कराची। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले के बाद सिंध सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की बनाई गई SOP को अफसर शाही ने ही हवा में उड़ा दिया। सिंध सेक्रेटेरिएट सरकारी नकारा गाड़ियों का कबाड़ खाना बन गया है। गाड़ियों को सख्त हिदायत के बावजूद ठिकाने नहीं लगाया गया। ये मनाजिर हैं सूबाए सिंध के दारुल खिलाफा सिंध सेक्रेटेरिएट के, जो सरकारी नकारा गाड़ियों का कबाड़ खाना बन गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने नई सिक्योरिटी SOPs के तहत नकारा सरकारी गाड़ियों को ठिकाने लगाने का हुक्म दिया था। हुक्मनामे को 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन अफसर शाही इन नकारा गाड़ियों को ताहाल ठिकाने नहीं लगा सकी। सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेशन और वर्क्स एंड सर्विसेज ने ताहाल हुक्म पर अमल दरामद नहीं कराया। कबाड़ खाने में तब्दील सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर मौजूद ये गाड़ियां सिक्योरिटी रिस्क बन गई हैं। अफसर शाही की जानिब से नकारा गाड़ियों से सरकारी नंबर प्लेटें भी नहीं हटाई गईं। नकारा सरकारी गाड़ियों को ठिकाने लगाने के लिए क्लिफ्टन में वाक़े DMC ईस्ट का पार्क मुख्तस किया गया है, लेकिन अफसरान की अदम तवज्जोही के बाइस सरकारी नकारा गाड़ियां ताहाल सिंध के अंदर ही मौजूद हैं। आजाद नोडियो, सिटी 21। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास हुआ, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में दोनों इदारों के दरमियान ताउन के फ़रोग़ के हवाले से इजहार ख्याल किया गया। PTA के लाइसेंस याफ्ता ऑपरेटर्स के जरिए IPTV पर खसूसी तवज्जो देने के साथ पाकिस्तान में केबल सर्विसेज के ऑपरेशन में सहूलत फ्राहम करने पर भी बातचीत की गई। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन को आगाह किया गया कि सार्फिन तक बेहतर डिजिटल रसाई हासिल करने के लिए ज़ाब्ता इखलाक पर अमल ज़रूरी है, जिसके बाद लोकल इन लाइसेंस की दरख्वास्त दी जा सकती है। MQM के साबिक रुकन सूबाई असम्बली कामरान अख्तर कहते हैं डिजिटल मरदमशुमारी पर बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही हैं। नादरा और इदारा शुमारियात से राबते में है। इस मरतबा कराची के मैंडेट पर किसी को भी डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार। जी बिल्कुल, शहर कायद में डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ हो गया है। इस सिलसिले में जहां शहरियों को मुश्किलात का सामना है, वहीं MQM पाकिस्तान जिसकी जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कैंप भी लगाए गए हैं, उन्हें भी खासी मुश्किलात का सामना है। कारकुनों को, उनके ज़िम्मेदारान को मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ इसी मामले पर बात करने के लिए MQM के साबिक रुकन सिंध असम्बली कामरान अख्तर मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे, ये बताइएगा कि जो मुश्किलात सामने आ रही हैं, तो इसके हल के लिए आप लोगों ने किसी से रब्ता किया? MQM का किसी से रब्ता हुआ है? देखिए, सबसे बढ़कर सबसे पहले तो मैं अहले वतन को, पूरे पाकिस्तान भर को, बिलखुसूस इस कराची शहर की आवाम को ये मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पिछले 18 वर्षों बाद जो मरदमशुमारी हुई, अल्लाह अल्लाह करके जो मरदमशुमारी की गई, उसमें जो है वो शहर में ऐसा कट लगा दिया गया, जैसे वो चाय का कट कहते हैं ना, कि आधा, जो महंगाई के इस दौर में एक फुल कप की बजाय आधे कप को जो है वो कहते हैं कि कट वाली चाय लेकर आ जाओ। तो इसी तरह से शहर के साथ जो है वो कई दिहाइयों से 1960 के बाद में जो मरदमशुमारी होती चली आई है, उसमें जो है वो कट पर कट लगते रहे हैं। तो ये MQM की काविशें हैं। MQM ने हर फोरम पर इसका जो है वो मुतालबा किया और अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुरखरू किया और एक MQM का एक कारकुन जो है वो आवाम की खिदमत के लिए हाजिर है, आगाही के लिए हाजिर है, आवाम की सहूलत के लिए घर घर जाकर जो है हमारे कारकुनान जो है वो आवाम को जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि डिजिटल मरदमशुमारी से मुतालिक जो है MQM को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आवाम की सहूलत के लिए इन्होंने शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में आज जो है वो चंद कैंप लगाए हैं, जो आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद कैंप जो है वो लगाएंगे और उनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। जी, इलेक्शन से मुतालिक केस सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने फुल कोर्ट का मुतालबा कर दिया है। सेक्रेटरी बार एसोसिएशन की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि 9 रुकनी बेंच में सीनियर जज जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को शामिल ना करने पर तशवीश है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। देखें जी, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इलेक्शन के मुतल्लिक केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट का जो है मुतालबा कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एलामिया जो है वो जारी किया गया है। हाई कोर्ट बार के एलामिया के मुताबिक 9 रुकनी बेंच में सीनियर जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को शामिल ना करने पर इंतहाई तशवीश है। सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आमिर नवाज वड़ायत के मुताबिक जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से रज़ाकाराना तौर पर अलहदा होना चाहिए, जबकि मुतअद्दिद फरीक उन पर एतमाद का इजहार कर चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट बार के एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए कि अदलिया पर आवाम के एतमाद की बहाली के लिए मौसर इक़दाम करें। अहम सियासी केसेस की समाअत के लिए मखसूस बेंच की तश्कील दिए जाने का तासुर जो है खत्म होना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट बार के एलामी के मुताबिक सिंध बार का देरीना मुतालबा है कि बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस का खुसूसी अख्तियार जो है वो नहीं होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन डॉक्टर मकसूद अहमद शहीद कांस्टेबल ज़हीर अहमद के घर पहुंच गए। उन्होंने अहले खाना से इजहार ताज़ियत के बाद शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। हेड कांस्टेबल ज़हीर 22 फरवरी को कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़े पुलिस चौकी में डाकुओं के साथ मुकाबले में ज़ख्मी हो गए थे। बाद अस्पताल में दौरान इलाज शहीद हो गए थे। DIG सिक्योरिटी ने शहीद कांस्टेबल के बच्चों के औरंगी टाउन में कारखाने में साथ काम करने वाले 2 लड़कों ने बच्चे को बदफेली का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुतासरा बच्चे के वालिद की मदयत में मुकदमा दर्ज करके दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। शर्मनाक वाक़या औरंगी टाउन में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुदई ने बताया कि बेटे के साथ काम करने वाले 2 मुलजमान ने बदफेली की और वीडियोज़ भी बनाई। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश जारी है। गवर्नर सिंध कामरान खान तसौरी ने DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद को तबाहकुन सैलाब के दौरान खिदमात के एतराफ़ में मेडल और शील्ड से नवाजा। DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद को IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने सैलाब के दौरान फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किया था। उन्होंने मुश्किल वक्त में सैलाब की इमदादी सरगर्मियों में कमांड और फ्लड रिलीफ कैंपों का क़याम किया। डॉक्टर मकसूद अहमद ने सैलाब मुतासरीन की इनके घरों में महफूज वापसी की निगरानी भी की। गवर्नर सिंध ने डॉक्टर मकसूद अहमद को गवर्नर हाउस में शील्ड और मेडल भी पेश किया। आगे बढ़ते हैं। कराची रमज़ान से कबल ही गदागरों का मस्कन बन गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से गदागर शहर कायद पहुँचना शुरू हो गए। आने वाले शहर के पुलों, BRT ट्रैक्स के एतराफ़ और खाली प्लॉट्स पर कब्जा जमाने लगे। अल्लाह के नाम पर कुछ दे जा बाबा, रोशनियों का शहर गदागरों के निशाने पर आ गया। शहर का कोई पुल हो, खाली मैदान हो या चौराहा, गदागर अपना मस्कन बना रहे हैं। अब तो BRT ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन भी महफूज नहीं। पुलों के नीचे और ट्रैक के तरफ गदागरों के डेरे मौजूद हैं। गदागरों ने कराची के बासियों को परेशान कर दिया। कहते हैं कोई बाजार हो, होटल हो, सिग्नल या चौराहा, चैन से नहीं बैठ सकते। गदागर ऐसे घेरते हैं गोया शहर वासियों ने इनका कर्जा देना हो। मतलब जो डिजर्विंग होते हैं उन्हें तो आप बेशक एज अ सदका, एज अ खैरात दे दिया करें थोड़े पैसे, लेकिन जो एज अ प्रोफेशन लेके ये चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ गलत है। कुछ ये लोग तो ऐसा भी कर लेते हैं कि भाई मैं बीमार हूँ, मैं माजूर हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ है, तो फिर अगर आप हेल्प कर, यानी ये लोग कोशिश ये कर रहे थे कि मुख्तलिफ टेक्निक से जो है लोगों से पैसे ले ले। नागन पुल के नीचे ग्रीन लाइन के तरफ से अब गदागरों को हटाया जा रहा है। कुरंगी क्रॉसिंग पर नदी में अब भी उनकी बस्ती
कायम है। हर साल रमजान में पेशावर गदागर कराची के शहरियों की जिंदगी अजीरन करते हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर राबेल अशरफ के साथ आदिया नाज, सिटी 21। रमज़ान से कबल ही शहर में गदागरों ने डेरे जमा लिए। कुरंगी नदी पर भी गदागरों ने बाकायदा खैमा बस्ती कायम कर ली। होटलों पर बैठने वाले भी गदागरों से परेशान हो गए हैं। माह सयाम से पहले गदागरों ने शहर के फुटपाथों, चुरंगियों पर भी ठिकाने बना लिए। कुरंगी नदी गदागरों की आमाजगाह बन गई। शहरियों का कहना है कि हर मकाम पर गदागर नजर आने लगे हैं। होटलों पर भी सुकून से बैठे नहीं बैठने देते। इन मुनफरिद अंदाज से मांगते हैं कि पैसे नहीं चाहिए, खाना दिला दें। शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुझान जारी है। करेले और प्याज की कीमत में कमी देखी गई है, जबकि आलू और भिंडी की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार है। करेला 20 रुपये कमी के साथ 280 रुपये फ़ी किलो पर ही बराजमान है, जबकि आलू 50 रुपये फ़ी किलो पर बराजमान है। प्याज 40 रुपये कमी के साथ 140 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गई। मटर 240 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। अदरक और लहसुन की कीमतें बदस्तूर आसमान पर हैं। सिंध के 18, 19, 20 और 21 ग्रेड के अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का मामला इल्तवा का शिकार होने लगा। अफसरान की तरक्कियों में अफसरान ही आड़े आ गए हैं। मुकम्मल वर्किंग पेपर फ्राहम ना करने की वजह से तरक्कियों का अमल खटाई में पड़ गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने तमाम महकमों को सिलेक्शन बोर्ड इजलास से 2 हफ्ते कबल मालूमात फ्राहम करने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी महकमा बराए सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन एडिशनल मोहम्मद सलीम राजपूत ने चीफ सेक्रेटरी तरक्यात, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज को खत अरसाल कर दिया है। सदर कुरंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री फराजुर रहमान ने चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी को मसाइल का हल करार दे दिया। कहते हैं कि बिजनेस मैनों को आगे लाया जाए, चार्टर्ड ऑफ मैशत पर बात की जाए। इस हवाले से अपडेट करेंगे काविश मेमन। जी बिल्कुल, वफाकी वज़रा तो ये मंतक देते हुए दिखाई देते हैं कि महंगाई का असर आवाम पर कम से कम पड़ेगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि महंगाई का जो असल असर है वो गरीब आवाम पर ही पड़ता है। मेरे साथ इसके मौजूद हैं सदर काटी फराजुर रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू C21 का और आपका कि आप जो है वो इस मौक़े पे हमारा बयान जानने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। बात यह है कि सबसे पहली जो सिचुएशन है वो ये है कि महंगाई जो है वो उरूज पे जा चुकी है और तारीख़ के बदतरीन मुकाम पे हम खड़े हुए हैं कि जहाँ पे एक गरीब आदमी रोटी के लिए तड़प रहा है। और बात यह है कि फैक्ट्री के दरवाज़े बंद हो चुके हैं और ताले लग चुके हैं, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो आपके सामने है। मगर बात ये कि मैं कहता हूँ इकनॉमी का पहिया चलेगा तो आपकी सियासत चलेगी, इकनॉमी का पहिया चलेगा तो फ़ौज चलेगी, इकनॉमी का पहिया चलेगा तो ब्यूरोक्रेट चलेगा। बात ये है कि हम लोग तो अपना सब कुछ सरमाया यहाँ लगा के बैठे। पाकिस्तान के अंदर अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया था तो वो 1 करोड़ रुपया तो नहीं रहा, ठीक है ना। तो बात ये कि अगर मैंने पाकिस्तान को प्रीफ़र किया, यहाँ रहना प्रीफ़र किया, या मेरे भाइयों ने या मेरे बिजनेसमैन ने यहाँ पे काम करना प्रीफ़र किया, तो उनका क्या कसूर है कि उन्होंने जो है मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर नहीं भेजा? उनकी क्या वो थी? तो इसका मतलब है कि वो लोग जिन्होंने पैसा बाहर भेज दिया वो कामयाब रहे, ठीक है। तो बात यह है कि ये सूरत हाल काफ़ी गंभीर है और अगर इन मामलात को फौरी तौर पे स्टेबलाइज़ नहीं किया गया तो मुल्क अनारकी की तरफ जा सकता है। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में फराजुर रहमान का ये कहना था कि इंडस्ट्री के लिए मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और इन तमाम मसाइल का जो हल है वो चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी है। जी बरामदात की मद में डॉलर की आमद से गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में बेहतरी का सफ़र जारी रहा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 2 रुपये 83 पैसे सस्ता होकर 259 रुपये 99 पैसे तक गिर गया। हफ्ते डॉलर की उड़ान थम गई, रुपए की कदर बेहतर, अमरीकी करेंसी की घट गई। डॉलर की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात की मद में डॉलर मौसूल होने से रुपए पर दबाव कम हुआ। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 2 रुपये 83 पैसे सस्ता होकर 259 रुपये 99 पैसे का हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में रुपए की कदर में 2.82% बेहतरी हुई। माहिरीन का कहना है कि बरामदात की मद में डॉलर मौसूल होने से रुपए पर दबाव कम हुआ और मुसलसल 2 हफ्ते से बैरूनी कर्ज की कोई बड़ी अदायगी भी नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक के ज़खायर 6 करोड़ 60 लाख डॉलर इजाफे से 3 अरब 26 करोड़ डॉलर हो गए। दूसरी जानिब एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 268 रुपए पर मुस्तहकम रहा, जबकि यूरो 1.5 रुपए सस्ता होकर 280 रुपए और बरतानी पाउंड 2 रुपए इजाफे से 318 रुपए का हो गया। एक हफ्ते में इमारती धर्म 1 रुपए 70 पैसे इजाफे से 75 रुपए 20 पैसे और सऊदी रियाल 20 पैसे इजाफे से 70 रुपए 70 पैसे का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21।
IMF کے سخت پالیسی پر عمل کرنے کے مطالبے پر شرح سود میں اضافے کے خدشات کے باعث اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے دوران مندی دیکھی گئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ہفتہ وار رپورٹ ایک ہفتے کے دوران مارکیٹ میں منفی رجحان رہا۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 410 پوائنٹ کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس 1% کمی سے 40,707 کی سطح پر بند ہوا، جبکہ 26 ارب روپے مالیت کے 69 کروڑ شیئرز کا کاروبار کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ٹی بلز کی نیلامی میں کٹ آف ییلڈ بڑھنے پر شرح سود میں اضافے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاروں کی رائے میں شرح سود میں 2% تک اضافے کے خدشات ہیں۔ ایک ہفتے میں شیئرز کی قیمت کم ہونے سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن 109 ارب روپے کمی سے 6,302 ارب روپے رہ گئی، جبکہ کاروباری ہفتے کے دوران ایک اچھی خبر بھی آئی، جس کے مطابق حکومتی اقدامات کے باعث درآمدات پر سختی ہونے سے جنوری 2023 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 21 ماہ کی کم سطح 24 کروڑ 20 لاکھ ڈالر رہ گیا۔ اشرف خان، سٹی 21۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $8 سستا ہو گیا۔ مقامی صرافہ بازار میں ایک تولہ سونا 1,000 روپے کمی سے 1,94,100 روپے پر آ گیا۔ آل سندھ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونا $8 سستا ہو کر $1,810 فی اونس تک گر گیا۔ ایک تولہ سونا 1,000 روپے سستا ہو کر 1,94,100 روپے پر آ گیا۔ 10 گرام سونا 858 روپے کمی سے 1,66,409 روپے پر ہو گیا ہے۔ ایک تولہ چاندی 20 روپے کمی سے 2,080 روپے پر آ گئی ہے۔ پاکستان میں آٹو سیکٹر شدید مشکلات میں پھنس گیا۔ پاکستان ایسوسی ایشن آف آٹوموٹیو پارٹس کے سابق چیئرمین کا کہنا ہے کہ درآمدات میں کمی کے فیصلے نے آٹو سیکٹر کو عارضی بندش پر منتقل کر دیا ہے۔ درآمدات کی بندش کا فیصلہ آٹو سیکٹر کی عارضی بندش کا سبب بننے لگا۔ سابق چیئرمین پاکستان ایسوسی ایشن آف آٹوموٹیو پارٹس مشہود خان کا کہنا ہے کہ سال 2022 میں 1,90,000 گاڑیاں بنائی گئیں۔ سال 2023 میں جنوری سے دسمبر 80 سے 90,000 گاڑیاں مشکل سے ہی بنائی جا سکیں گی۔ حکومتی پالیسیوں کے سبب آٹو سیکٹر کی پیداوار سال 2023 میں بمشکل 40% رہے گی۔ مشہود خان نے حکومت میں پلاننگ کی کمی اور برآمدات میں کمی کے فیصلے کو انڈسٹری میں خام مال کی قلت کا سبب قرار دیا۔ 2023 یعنی کہ جنوری سے دسمبر شاید اس کا 40% آپ والیوم پروڈیوس کر پائیں گے، یعنی کہ 80 سے 90,000 اگر آپ گاڑیاں بنائیں گے ایک سال میں تو سمجھیں کہ پارٹس مینوفیکچررز کے لیے سروائیول کتنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ صرف صورتحال یہاں تک پہنچنے کی جو ہے آپ کی شارٹ ٹرم اسٹریٹجیز تھی۔ مشہود خان نے اگلے 11 ماہ میں آٹو سیکٹر کی صورتحال مزید خراب ہوتے بھی دیکھ لی۔ کہا حکومت کے بنا مشاورت فیصلوں سے گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کی عارضی بندش کی جا رہی ہیں۔ آپ شارٹ ٹرم سٹیپس لیتے گئے، انڈسٹریز بند ہوتی چلی گئی۔ آج یہ صورتحال ہے کہ انڈسٹریز میں صرف OEM نہیں، پارٹس مینوفیکچررز کے لیے بھی مشکلات ہیں کہ ان کے پاس جو را مٹیریل ہم امپورٹ کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ سے بند ہے، اور جو لوگ مارکیٹ سے لیتے ہیں لوکل ڈومیسٹک مارکیٹ سے، اس کی بھی پرائسز اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ وہ سروائیو نہیں کر پائے گا۔ آٹو سیکٹر انڈسٹری کے صنعت کاروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہی صورتحال رہی تو آٹو سیکٹر مکمل بند بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آٹو سیکٹر بند ہو گیا تو اس سے منسلک انڈسٹری بھی بند ہو جائیں گی۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ ریلوے اسکول کو NGO کے تحت دینے کا معاملہ ہے۔ اسکول میں انصاف ویلفیئر نے تباہی مچا دی ہے۔ اسکول کا فرنیچر، کلاس رومز یا کھیل کا میدان سبھی تباہ حال ہو گئے ہیں۔ ریلوے اسکول کراچی کی حالت ابتر ہو گئی۔ تعلیمی معیار سیاست کی بھینٹ چڑھ گیا۔ نائب صدر ریلوے یونین ورکر لائن جاوید آوان کی سٹی 21 سے گفتگو میں اسکول کے انتظامیہ امور کا کچا چٹھا کھول دیا۔ جاوید آوان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی مداخلت سے اسکول کا تعلیمی معیار برباد ہو گیا۔ ماضی میں اس اسکول سے ہزاروں کامیاب طلبہ فارغ التحصیل ہوئے۔ اب اسکول کے بچے زمین پر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اسکول 2015 میں دے دیا گیا انصاف ویلفیئر کے نام پر۔ انصاف ویلفیئر جو چلاتی ہیں وہ عارف علوی کی گھر والی ہیں۔ اس کاسموپولیٹن سٹی کراچی شہر ہے، اس اسکول کے بچے آج برما ٹیک کی لکڑی کے جو ڈیسک تھے ریلوے کے وہ بھی چوری کر کے لے گئے۔ آج 5 کلاسیں جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ رہی ہیں ٹھنڈ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری فیسیں آج بھی لے کے جا رہے ہیں۔ آج میرا خیال 750 بچے رہ گئے دونوں شفٹوں میں۔ جاوید آوان نے کہا کہ اسکول میں معاشرتی علوم کے نصاب میں بچوں کو سیاسی سرگرمیوں سے متعلق تعلیم دی جاتی ہے۔ عمران خان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ 4تھی کلاس کی معاشرتی علوم کے اندر عمران خان کا پورا ایک لیسن دیا ہوا ہے، اس میں اس کا نام کیا چندے کیسے مانگے اور سارا کچھ اس کا، اور ایگزام کے اندر اس کے ہر سال اس کلاس کے لوگوں کو اس کا سوال آتے ہیں عمران خان صاحب کے متعلق۔ تو قائد اعظم کہاں گئے؟
लियाकत अली खान कहाँ गए और बाकी लोग कहाँ गए। मजदूर रहनुमा ने हुकूमत और वजारत रेलवे से मुतालबा किया कि स्कूल में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल और अहम तालीमी इदारों को सियासत से पाक किया जाए। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। आपको बताएं, शाहीन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज कैंपस 3 में ओपन हाउस फन गाला का इनेकाद किया गया। इवेंट में बच्चों ने गाने सुनाए, मुख्तलिफ गानों पर डांस भी किए। शाहीन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज कैंपस 3 में हुआ फन गाला। बच्चे बड़े सब ने ही किया खूब एंजॉय, खाना पीना, डांस और बहुत कुछ। कैंपस प्रिंसिपल का कहना था कि बच्चों के लिए निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियां भी बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, बच्चों के एकेडमिक्स से हट के थोड़ा सा आज फन का हमने एहतमाम किया है। सैटरडे बच्चों का ऑफ भी होता है और स्प्रिंग सीज़न शुरू हुआ हुआ है, तो उस हवाले से हमारी मैनेजमेंट ने कहा कि कुछ हल्ले गल्लों के प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि हर वक्त पढ़ाई से भी बच्चे, और आप देख सकते हैं कि बच्चे, पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स कितना एंजॉय कर रहे हैं। शाहीन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की बानी का कहना था कि हम इस तरह के इवेंट्स मुनक्किद करते रहते हैं ताकि बच्चे जिस्मानी तौर पर भी फिट रहें। कोरोना की वजह से, गेम की वजह से हमने ECA करा दिया। ECA का वही मकसद होता है कि एक्टिविटी कराना, बच्चों को एक्टिविटी हर किस्म की इसमें मतलब एक्टिविटी करते हैं बच्चे। इवेंट में न सिर्फ बच्चों ने बल्कि बच्चों के साथ आए वालिदैन ने भी खूब एंजॉय किया। किसी ने गाना सुनाया तो किसी ने मजे मजे के खानों पर हाथ साफ किए। कैमरामैन अजमल शाह के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। दीनी जामियात के सालाना इम्तहानात जारी हैं। जामिया बनोरिया आलमिया में तालीमी बोर्ड मजमा अलूम के तहत इम्तहानात जारी हैं। जामिया बनोरिया आलमिया एक बैनुल-अक़वामी दीनी दर्सगाह है, जहाँ पर 73 ममालिक के 5000 से ज़ायद तलबा मुख्तलिफ शोबाजात की तालीम हासिल कर रहे हैं। मजमुल इल्म बोर्ड के तहत होने वाले इम्तहानात में शोबा कुद दर्स निज़ामी के तलबा शामिल हैं। अमरीका, अरब ममालिक, मलेशिया, थाईलैंड, फिलिपाइन और दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा इम्तहानात के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हैं और जामिया बनोरिया को बेहतरीन तालीमी इदारा करार देते हैं। जामिया बनोरिया के निगरान आला इम्तहानात मौलाना इफ्तिखार और नायब नाजिम तालीमात मुफ्ती अत्ताउल्लाह वहीद का कहना है, जामिया बनोरिया में चारों मसालिक की तालीम फराम की जाती है। इम्तिहानात का सिलसिला 6 रोज तक जारी रहेगा। हमारे यहाँ इस सेंटर में हमारे बहुत सारे मराकज़ हैं जहाँ इम्तिहानात का सिलसिला जारी और सारी है। यहाँ इस सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह तलबा जो है 2 हिस्सों में तकसीम है, मुल्की भी है, गैर मुल्की भी है। तालिबात इसके अलावा है, उसमें भी मुल्की गैर मुल्की है। इम्तिहानात में तलबा का नज़्म ज़ब्त काबिल दीद है। तालिब इल्म पुरसुकून माहौल में इम्तिहानात दे रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। महंगाई के बायस फूलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसकी वजह से फूलों की खरीदो फरोख्त में नुमाया कमी आ गई है। मजीद बताएंगे सादत हुसैन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के साथ साथ हर अशिया की कीमत जो है वो आसमान को छू रही है। इसी तरीके से जो फूलों की मार्केट है और जो बिकने वाले यहाँ पे खुसूस तौर पे गुलाब के और जो दीगर फूल हैं उनकी कीमतों में भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो कस्टमर है उसकी ख़रीद से जो है काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया है। इसी सिलसिले में इस वक्त मैं लियाकताबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पे बड़ी फूल की मार्केट है और यहाँ पे इसी हवाले से हम जानते हैं, हमारे साथ जो है यहाँ पे सुल्तान साहब मौजूद हैं जो यहाँ पे काफ़ी अरसे से फूलों का कारोबार कर रहे हैं। जी सुल्तान में मुझे बताइएगा कि फूलों की कीमतों में इजाफा हुआ है, कितना रुझान है कस्टमर का, इस हवाले से बताइएगा। तो रुझान तो एक आधे से भी आता रह गया। अगर कोई बेचारा 1 किलो लेता है वो आधा किलो ले रहा है, 2 किलो वाला अब 1 किलो ले रहा है और समझ 100% इजाफा हो गया। इसकी वजह है कि पीछे भी माल कम है, पंजाब भी जा रहा है और फिर अब पेट्रोल पे जो बढ़ गए, इसकी वजह से जो है किराया में बहुत इजाफा हो गया है, तो वहाँ से भी बहुत महंगाई हो गई। पहले ही देखते थे कि मज़ारात के लिए जो है, खुशी के त्योहारों के लिए जो है एक बड़े ऑर्डर के ऊपर से यहाँ से फूल जाते, तो अब भी वो सिलसिला है। अब लोग खिसियाने हो गए, अब बहुत कम लोग जो है ना अपने फालतू खर्चे उन्होंने कम कर लिए हैं। अब बहुत कम लोग खरीदारी कर रहे हैं वहाँ से जो है, और मज़ार का भी काम बहुत कम हो गया वहाँ से। गुजर बसर फिर कैसे हो रहा है फिर आपके कारोबार में? तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तो बात है, अल्लाह पाक कराने वाला, नीली छतरी वाले कराने वाले सारे काम, क्या करें। आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले अगर हम देखें तो पहले क्या कीमत थी गुलाब की और अब क्या कीमत, थोड़ा बताइए। अब तो कम से कम 300 रुपये चल रहा है, 250-300 रुपये चल रहा है, और पहले जो है ये 70, 100, 80, 40, 50 रुपये चलता था। आम वक्त में 50 रुपये 60 रुपये से ऊपर नहीं जाता था। अब तो वहाँ से 80 रुपये चल रहा है। फिर बर्फ़ है, पानी है, फिर यहाँ पर ला के फिर ज़्यादातर बात है उसके भी अखराजात हैं, काफ़ी पहुँच जाते हैं। बारात की भी आमद है तो उस सिलसिले में भी कीमतें और बढ़ेंगी इसी कीमत में? कीमतें क्यों नहीं बढ़ेंगी, कीमतें बहुत बढ़ेंगी इसके अंदर। क्यों, अगर ये है कि दुआ करें कि अल्लाह पाक पंजाब से अगर आना शुरू हो जाएगा तो फिर मुस्तहकम हो जाएगा। अगर पंजाब से नहीं आएगा तो फिर नुकसान होगा। अगर पंजाब से माल भरपूर आ जाएगा तो फिर फ़ायदा होगा, आम सार्फिन को भी फ़ायदा होगा और दुकानदार को भी फ़ायदा होगा अगर पंजाब से आ जाएंगे।
बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने जाना कि सुल्तान साहब का कहना था कि फूलों में जो है 100% जो है कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है। साथ ही उनका ये कहना था कि पहले जो लोग बड़ी तादाद में जो है फूल यहाँ से लेके जाते थे, अब उन्होंने जो है ख़रीदारी भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है। साथ ही शब बारात की भी आमद है, उस हवाले से इन्होंने बताया कि शब बारात पे भी जो है ये बताया जा रहा है कि फूलों की कीमतों में जो है और ज़्यादा इजाफा देखा जा सकता है। जी। और कराची बोहरा फूड फेस्टिवल सच क्या है, अपडेट करेंगे राहील बेग। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं बोरा फूड फेस्टिवल में, जहां पर बोरा कम्युनिटी के रिवायती खानों से सजा ये फेस्टिवल है और यहां पर बड़ी तादाद में फैमिलीज रुक कर रही हैं और अपने मनपसंद खानों के मज़े उड़ा रही हैं। जहां पर तमाम रिवायती खाने मौजूद हैं, वहीं बोरा कम्युनिटी में थाल को भी एक ख़ास अहमियत हासिल है और थाल सजाकर खाने का एहतमाम किया जाता है। आखिर इस थाल की क्या खास बात है, तो ये इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। फेस्टिवल कैसा जा रहा है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग भी आ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, खाने को पसंद कर रहे हैं और हमसे डिमांड कर रहे हैं कि आपका ये वाला खाना नहीं है और वो वाला खाना नहीं है। तो हम अब प्रिपेयर हो रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम के लिए हमें अब क्या क्या और चीज़ें ऐड करनी है अपने खाने बिल्कुल जी। और अच्छा, जो आपका एक रिवायती डिश है वो थाल है, ये थाल किस तरह से बनता है और क्या रिवायत है, क्या कहेंगे? थाल हमारा पूरा एक बड़ा थाल होता है, उसमें हम 7-8 लोग बैठते हैं और उसमें नमक से स्टार्ट होता है, नमक होता है, फिर मीठे चावल होते हैं, मिठास में आइसक्रीम वगैरह होती है, फिर हमारे पास खड़ास होता है, उसमें हमारे पास कुछ भी आप ड्रम स्टिक रख लें हमारी, या फिर हमारे कटलेस है, या फिर बोरा चिकन जो होती है वो होते हैं। उसके अलावा हमारे पास मेन कोर्स आता है, मेन कोर्स में बिरयानी और सूप, रायता वगैरह होता है। बिल्कुल, एक पूरा बुफे जो होता है वो उस थाल के अंदर होता है। हम पूरा बुफे जो आपका अलग अलग सिस्टम जो अलग अलग होता है वो एक साथ पूरा एक थाल में लाके मर्ज कर दे। बिल्कुल, इस वक्त यहाँ फेस्टिवल में मजे मजे के खाने हैं और ये फेस्टिवल कल तक जारी रहेगा। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।